Bismillahirrahmanirrahim. Yes, friends, we have studied that data types define which type of data can be stored in computer, right? And which types of information can be performed on it. For example, we have some data types, string. We know that we can store alphanumerical and symbolic data in string, but these numbers cannot be used in calculation. We can apply we can store numbers, right? We can store letters, symbols like dollar, buffer, hash. Hmm, अच्छा. We cannot apply calculation, not for calculation, and we have studied that we can apply string handling functions, है ना? तो in exam sometime string handling functions are given, we have in our insert, the string handling function which will be used will be given in your insert document, and these string handling functions can only be applied on string, or if there is a single character, so it may be used as char. ठीक है, आपको इंसर्ट मिलेगा, ठीक है, और आप उस इंसर्ट को यूज करके आप करोगे. अच्छा, string handling functions can be applied on it. अच्छा, you cannot apply string handling functions on uh, other data types. These will be applied only on string और char. ठीक है ना, याद रखना है कि ये can be applied on string और char. अगर एग्जाम के अंदर सपोज किया दे हैव गिवन अ नंबर 75 और आपसे बोलते हैं इसका लेफ्ट या राइट या लेंथ या मिड निकालें, तो ये दैट विल बी एन एरर. ठीक है, तो यू विल मेंशन दैट दिस इज एन एरर. राइट बेटा. देन वी हैव integer and integer and real, huh? So they can store plus minus number and for calculation. सही. इफ यू और कैलकुलेशन के लिए जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं, वी हैव ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड div int and so on. ठीक है, तो if these operators are asked to apply on string, so you will show that there is an error, huh? You will mention that we cannot apply these things, a numerical operator on string, so there will be an error. Then we have studied a data type that was date and a data type that was boolean. For boolean we have boolean operators and or not, right? We have these boolean operators. Achha, all these data types are known as built-in data type, or sometimes we say atomic data type. But sometimes these data types don't fulfill our requirement. So we need to develop our own data type. If we are developing our own data type, that data type will be known as user defined data type. So we can divide data types into two groups. One is user defined data type and other one is built-in data type, right?
अच्छा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और यूडीटी. In our syllabus we have a user defined data type, that is record data type. Achha, we can compare record data type with arrays. In arrays are homogeneous. What is meant by the word homogeneous? We can store multiple elements of same data type. Multiple elements of same data type. But in record, we can store multiple elements of multiple data type. For example, we want to store, you want to define a user defined data type for students. हाँ? अब students के लिए if we are defining a user defined data type, so and we want to store student roll number, name and marks, right? And is pass means के student is pass or fail. So for students, we can develop a user-defined data type, uh, uh, define a data type to store students, name, marks, and status, result, pass or fail. ठीक है? So the keyword to define a user-defined data type is type. Then we write down the name of data type, suppose student, or we can write down T student. T is mentioning that this is your user defined data type. And here we will use, it's okay, it's okay if you are using or not. Acha, what I am writing, I will declare inside this definition, I will declare name. So it will be string, means I am using built-in data type to define my own data type, right? So this is also known as composite data type. Composing data types are the user defined data type which use built-in data types. ठीक है बेटा. अच्छा, फिर क्या किया अभी हमने हमने लिखा है और क्या चाहिए हमें. वी वांट टू स्टोर मार्क्स, सो डिक्लेयर मार्क्स रियल or integer. It means we are using multiple data types. ठीक है. And then declare is pass boolean and type, right? तो ये आपके पास you have defined, this is known as definition of user defined data type. ठीक है. Now we can declare variables of it. To declare a variable, or even we can declare an array of UDT. ठीक है. Suppose I want to declare a variable to student, uh, uh, to declare a variable A as students or new student of T students data type. ठीक है. तो what I will write, I will declare normally how like normally we declare, I will write down declare new student colon, or here we write down the data type. Now our data type is T student. ठीक है. अच्छा,
we can declare to declare an array. Hello beta, Iza, how are you beta? Acha, you have physics paper tomorrow? But you are not joining class regularly. You were not present yesterday. Okay, okay, inshallah. अच्छा, I have हाँ yes बेटा. देखो बेटा, बेसिकली हमारे पास जब कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? What we do? Suppose you are asked to declare a variable to store uh, name of an employee. तो क्या करोगे आप? क्या कैसे करोगे? कैसे डिक्लेयर? एक एम्प्लॉय का जो नाम है, यू आर आस्क्ड टू स्टोर इट, तो इसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है. कैसे करोगे डिक्लेयर? डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग, राइट? ये आपने लिख दिया. बेसिकली दिस स्ट्रिंग इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप. ठीक है ना? स्ट्रिंग क्या है आपका? बिल्ट इन डेटा टाइप है. स्ट्रिंग हो गया, चार हो गया, इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, और डेट हो गया, रियल हो गया. ये आपके बिल्ट इन डेटा टाइप. ठीक है ना? अब आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आप अपनी डेटा टाइप बनाओ. हमने क्या कहा कि हमने अपनी एक डेटा टाइप बनाई. इस डेटा टाइप के अंदर हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टोरिंग, वी हैव डिफाइंड अ डेटा टाइप टू स्टोर स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, मार्क्स एंड रिजल्ट्स. ठीक है, ये हमने अपनी डेटा टाइप बनाई है. तो ये जो डेटा टाइप हमने बनाई है, इस पार्ट को हम कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप. अब हमने जो डेटा टाइप बनाई, आपने जो डेटा टाइप आपको मिली थी वो थी स्ट्रिंग, चार, इंटीजर, रियल, डेट, बुलियन. आपने जो डेटा टाइप खुद बनाई है, इसका नाम आपने रखा है टी स्टूडेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टी स्टूडेंट इज द नेम ऑफ योर ओन डिफाइंड डेटा टाइप. ये आपने अपनी डेटा टाइप बनाई. डेफिनेशन ऑफ यूडीटी. आप डेटा टाइप यू, हेयर यू मीन्स यूजर, एंड हेयर यूजर मीन्स यूजर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूजर है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर. तो यहाँ यू का मतलब यूजर, यूजर का मतलब प्रोग्रामर है. तो ये डेटा टाइप किसने बनाई है? यू एज अ प्रोग्रामर आपने अपनी डेटा टाइप बनाई, राइट? अब आपने डेटा टाइप बना दी, इसका नाम है टी स्टूडेंट. अब आपको क्या करना है? इसका वेरिएबल बनाना है. इस वेरिएबल का नाम है न्यू स्टूडेंट. तो जब आपने एम्प्लॉय की डेटा टाइप बनाई थी तो आपने कैसे बनाई थी? डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग, है ना? ये किया था ना? डिक्लेयर नेम कॉलन और स्ट्रिंग लिखा था. अब आपको क्या करना है? न्यू डेटा टाइप, न्यू स्टूडेंट की डेटा टाइप बनानी है. तो आप न्यू स्टूडेंट का वेरिएबल बनाना है. तो आप कैसे बनाओगे? आप लिखोगे डिक्लेयर न्यू स्टूडेंट कॉलन. अब यहां पर आप क्या लिखोगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम. जब आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम लिख दिया ना न्यू स्टूडेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू स्टूडेंट के अंदर यू हैव स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट मार्क्स एंड स्टूडेंट रिजल्ट. ये चीज है. आप इसके अंदर डेटा को स्टोर कर, जैसे आपने नाम लिखा है ना, तो नाम के अंदर आप वैल्यू कैसे, आपने वेरिए नेम का वेरिएबल बनाया था अभी स्टाफ का, तो आप इसके अंदर नाम की वैल्यू कैसे लिख सकते थे? आप लिख सकते थे कि इनपुट नेम, या आप क्या कर सकते थे? प्रिंट नेम, या आप क्या कर सकते थे? आप नेम के अंदर वैल्यू खुद असाइन कर सकते थे. नेम इज इक्वल्स टू इनकिलाब पटेल. ठीक है, ये आपने क्या किया? वैल्यूज को खुद असाइन की. जैसे आप नेम के अंदर जो स्ट्रिंग की डेटा टाइप है का एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दिया है,
अब आप क्या कर सकते हो, न्यू स्टूडेंट के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है, इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप है और स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर एट अ टाइम यू कैन स्टोर ओनली वन डेटा आइटम। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, रिकॉर्ड टाइप का, और इसके अंदर यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टोर स्टूडेंट नेम, न्यू स्टूडेंट नेम, न्यू स्टूडेंट मार्क्स, न्यू स्टूडेंट रिजल्ट। हाँ, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे न्यू स्टूडेंट नेम। अच्छा, अब न्यू स्टूडेंट को नेम से लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट डाल देते हैं। हमने कहा न्यू स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अब्दुल्ला पटेल। आपने कहा न्यू स्टूडेंट डॉट मार्क्स, आपने कहा 92। न्यू स्टूडेंट डॉट इज पास में आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया यस। तो बेसिकली आपका डेटा टाइप जो बनाया था स्टूडेंट टी स्टूडेंट, उससे आपने एक वेरिएबल बनाया न्यू स्टूडेंट, और इस वेरिएबल के अंदर आपके बेसिकली यू हैव थ्री डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज वेरिएबल, फील्ड्स ऑफ दीज वेरिएबल। हम कह सकते हैं कि दीज आर फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, जैसे आपके पास रिकॉर्ड के अंदर होता था। ठीक है, आप इसके अंदर वैल्यूज को इनपुट भी ले सकते हो, आप इसके अंदर वैल्यू को इनपुट भी ले सकते हो। इनपुट आपने कहा न्यू स्टूडेंट डॉट नेम, इनपुट न्यू स्टूडेंट डॉट मार्क्स, इनपुट न्यू स्टूडेंट, यानी बिल्कुल जैसे आप एक वेरिएबल के डेटा को वेरिएबल को डील करते थे या बिल्ट इन, वैसे ही आप इसके अंदर कर सकते हो। इस पास आप इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट न्यू स्टूडेंट डॉट नेम, प्रिंट न्यू स्टूडेंट डॉट मार्क्स, प्रिंट न्यू स्टूडेंट डॉट रिजल्ट। ठीक है, ये भी कर सकते हो। इवन ये कि जब आप ये जो आपके पास बिल्ट इन डेटा टाइप था, इसका आप अरे भी बना सकते थे। हाँ, आप कैसे बनाते थे, आपने कहा डिक्लेयर स्टाफ नेम अरे 1 to 20 ऑफ स्ट्रिंग। याद है, हम ये बना सकते थे, है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी अरे बना सकते हो। कैसे, आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम है टी स्टूडेंट, आपने क्या कर दिया, एक अरे बना दिया, आपने एक अरे बनाया टू स्टोर डेटा अबाउट 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या करोगे, आप बनाओगे ऑफ A2। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप डिक्लेयर A2 स्टूडेंट्स, ये आपके अरे का नाम हो गया। जैसे यहाँ पे अरे का नाम आपने क्या रखा हुआ है, आपने अरे का नाम रखा हुआ है स्टाफ नेम। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या कर दिया, इसका बना दिया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या किया आपने, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, अरे 1:30 ले लें, 0:99 ले लें, ऑफ टी स्टूडेंट। टी स्टूडेंट आपकी अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। मैं देखें, ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप है और ये हमारे पास है यूजर डिफाइन डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा, बिल्ट इन डेटा टाइप को आप डिफाइन नहीं करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं टाइप। सपोज किया मुझे स्टाफ का बनाना है, तो मैंने लिखा टी स्टाफ। टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, टी स्टाफ।
ठीक है, ये किया मैंने। अब मुझे स्टाफ की क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है। सपोज किया मुझे स्टाफ की आईडी स्टोर करनी है, तो मैंने कहा डिक्लेयर आईडी स्ट्रिंग। और मुझे नाम स्टोर करना है, डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग। और मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे इनकी पोस्ट डिक्लेयर। ये भी हो सकता है कि सबकी एक ही डेटा टाइप हो, या पे। हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप भी ले सकते हैं और एक भी। ठीक है, एंड टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप को हम डिफाइन नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। ये जो पार्ट हम बना रहे हैं ये डेफिनेशन का बना रहे हैं। ठीक है, अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। बिल्ट इन डेटा टाइप का मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, डिक्लेयर। मैंने लिखा नेम, हाँ, स्ट्रिंग। ठीक है ना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्लेयर टेम्पररी स्टाफ या एडमिन स्टाफ। किसका है भी, टी स्टाफ टाइप का। ठीक है, ये टी स्टाफ टाइप का हमने बनाया। तो दोनों की डिक्लेरेशन सेम सेम स्टाइल में हो रही है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब अगर मुझे, ये क्या हो गया, हमारा डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब मुझे वैल्यूज स्टोर करनी है, इनपुट लेनी है, प्रिंट करनी है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। मुझे चाहिए इनपुट नेम। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, अब एडमिन स्टाफ जो डेटा टाइप है वो एक एट्रीब्यूट नहीं है, इसमें इसमें 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब आपको इनपुट लेना है तो आपको पहले तो लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, और फिर उसके एट्रीब्यूट का नाम। क्या एट्रीब्यूट है भाई, आईडी। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर गोइंग टू इनपुट आईडी ऑफ एडमिन स्टाफ। ठीक है, इनपुट एडमिन स्टाफ का आपको क्या लेना है, नाम लेना है। तो आप एडमिन स्टाफ डॉट नेम लिखेंगे। इनपुट एडमिन स्टाफ की आपको पे इनपुट लेनी है, तो आप क्या लिखोगे, डॉट पे। तो ये क्या हुआ, आपका आईडी नेम और पे ये एट्रीब्यूट्स हुए। किसके हो गए ये एट्रीब्यूट्स, ये एडमिन स्टाफ के हो गए। ठीक है बेटा। आप आउटपुट भी दे सकते हो, तो आप क्या लिखते हो, आउटपुट नेम। आप यहाँ पे आउटपुट देना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट। अब 3 चीजें हैं ना, तो आपको बताना पड़ेगा क्या आउटपुट दे रहे हो। जैसे आपने कहा कि आउटपुट एडमिन स्टाफ डॉट आईडी। ठीक है ना। आपको ये बता मेंशन करना होगा, आउटपुट एडमिन स्टाफ डॉट नेम। आपको ये मेंशन करना होगा, आउटपुट एडमिन स्टाफ डॉट पे। ठीक है बेटा। अच्छा, आप वैल्यू असाइन भी कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि नेम इज इक्वल टू इनकलाब पटेल। और यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे भी लिखना है, तो एडमिन स्टाफ डॉट आई डी इज इक्वल टू, आपने लिख दिया ए बी 1 2 3। ठीक है। अब आपने क्या लिखा, अब आपको 3 चीजें असाइन करनी है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा एडमिन स्टाफ डॉट नेम इज इक्वल टू अब्दुल्ला। ठीक है। आपने क्या लिखा, एडमिन स्टाफ डॉट पे इज इक्वल टू, आपने जो चाहे लिख दिया, आपने पे लिख दिया आपने। तो ये क्या हो रहा है अभी, ये इनपुट है,
ये आउटपुट है, ये असाइनमेंट है। तो सब काम का हो रहा है यहाँ पर, है ना बेटा। अच्छा, अब आप इसका अरेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको नेम का अरे डिक्लेयर करना था तो हम किस तरह डिक्लेयर करते थे, हम लिखते थे डिक्लेयर नेम अरे 1 to 50, सपोज के 50 है, ऑफ स्ट्रिंग, याद है ना। अच्छा, ये याद रखना है कि 1 को हम कहते हैं लोअर बाउंड, एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, और ये क्या होता है, अपर बाउंड। ठीक है, जिस तरह आपने इसको अरे डिक्लेयर किया ना, ऐसे आप यहाँ पर भी अरे डिक्लेयर कर सकते हो। वही मेथड होगा, पहले क्या लिखा हमने, डिक्लेयर लिखा है, सपोज किया कि हमने बनाया, सपोज किया कि एडमिन का वो बना रहे हैं, कॉलन, फिर हम क्या लिख रहे हैं, अरे लिख रहे हैं। सपोज किया हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, 50 हैं। ठीक है, ऑफ, अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, और सपोज किया कि अब डेटा टाइप हमारी क्या है, हमारी डेटा टाइप है टी स्टाफ। तो अब आप क्या लिखोगे, टी स्टाफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग इट बेटा। तो इस तरह आप क्या कर रहे हो, अरेज को डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे आपने एक नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर यू हैव डिक्लेयर्ड एन अरे, राइट, यू आर जस्ट लाइक दिस, यू आर डिक्लेयरिंग एन अरे। अब इस अरे के अंदर भी आप इसी तरह काम कर सकते हो। सपोज क्या अरे आपका डिक्लेयर हो गया है, और आपको इसके अंदर क्या किया है, आपको इनका नाम इनपुट लेना है, इसमें वैल्यू स्टोर करनी है ना। तो आप आपको नेम के पहले नेम के अंदर कोई वैल्यू लिखनी है, तो आपने लिख दिया इनकलाब पटेल। ठीक है, नेम 1 के अंदर क्या है, इनकलाब पटेल। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एडमिन का बनाना है, तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, एडमिन एट 1 डॉट नेम, यानी ये पहले एडमिन का, एडमिन नंबर 1 का नाम है इनकलाब पटेल। आर यू गेटिंग बेटा। ठीक है, यहां पर हमने किसको रेफर किया है, आपका अरे को रेफर किया। देखो, नेम के साथ मैंने 1 लगाया, यहां पर भी मेरे अरे का नाम है एडमिन, तो एडमिन के साथ मैंने 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चों, आर यू गेटिंग इट। ठीक है ना, अब वही नॉर्मल वे में चल रहा है। आपको क्या करना है, 50 एम्प्लॉयज का, जितने 50 एम्प्लॉयज हैं इन सब की वैल्यूज अरे में स्टोर करनी है। तो आप क्या लिखते हो, फॉर इंडेक्स, हमने मालूम है कि ये जो 1 है ये इंडेक्स है। हाँ, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, 50। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इसमें इनपुट लेना है, तो हमने लिखा इनपुट नेम इंडेक्स। तो जब इंडेक्स 1 होगा तो पहला नाम, जब हाँ, नेक्स्ट इंडेक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या करोगे, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 50। अब यहाँ पे जो अरे है वो बेसिकली एक एट्रीब्यूट नहीं है, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, इनपुट, इनपुट क्या है, स्टाफ एट इंडेक्स डॉट नेम, इनपुट स्टाफ एट इंडेक्स डॉट, क्या था मेरा बच्चा, आईडी। आई पहले वाला आईडी थी। अब वो कोई ऐसा नेसेसरी नहीं कि बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हो, आप सीक्वेंस आउट भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। नेम, इनपुट स्टाफ एट इंडेक्स डॉट पे, नेक्स्ट इंडेक्स। आया समझ में बेटा, इज इट क्लियर। हेलो बच्चों, देखो बेटा, ये बात समझ में आई है।
अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आप देखोगे कितनी इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक क्वेश्चन है, ये विंटर 21 के अंदर ये क्वेश्चन सेट हुआ था, मैं भी आपको डिस्प्ले करता हूँ। हाँ, ये कब का क्वेश्चन है बेटा? विंटर 21 का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है? राइट सूडो कोड टू डिक्लेयर record डेटा स्ट्रक्चर फॉर टाइप स्टूडेंट। अब आपको जो क्या बनाना है, एक डेटा स्ट्रक्चर बनानी है record, उसकी टाइप क्या है? स्टूडेंट है। सही। तो आप क्या लिखोगे? टाइप स्टूडेंट। इसने टी नहीं लगाया, हम भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए? इसको स्टूडेंट आईडी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? डिक्लेयर स्टूडेंट आईडी। ये स्ट्रिंग होगी, देख लो डेटा से पता चल रहा है ये स्ट्रिंग है, टिपिकल वैल्यू इसमें दी हुई है CF1234। फिर डिक्लेयर क्या है भाई? ईमेल। ये भी क्या लग रहा है आपको? स्ट्रिंग लग रहा है, क्योंकि देखो क्या लिखा है कोटेशन मार्क में। ठीक है ना? डिक्लेयर। अच्छा, अब इसकी टिपिकल वैल्यू 1234 है, तो क्या होगा? club1 इंटीजर। डिक्लेयर club2 इंटीजर। ठीक है। और डिक्लेयर club3 इंटीजर। और फिर क्या हो गया? एंड टाइप। ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा आपसे? ये कह रहा है कि डिक्लेयर वन डी अरे और कंटेनिंग 3000। हाँ, तो अब क्या होगा? कैसे डिक्लेयर होगा बेटा? 3000 एलिमेंट्स का आपको वन डी अरे आपको डिक्लेयर करना है। कितने एलिमेंट है में? 3000 एलिमेंट्स हैं, उनका वन डी अरे डिक्लेयर करना है। तो अब 3000 स्टूडेंट्स का वन डी अरे डिक्लेयर कैसे करेंगे हम लिखेंगे डिक्लेयर मेंबरशिप, इसका नाम हो गया, गुड हो गया, शाबाश माशाल्लाह। फिर कॉलन आ गया, फिर क्या आ गया? अरे आ गया, फिर क्या आ गया? 1 कॉलन 3000 आ गया। ठीक है। ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर डेटा टाइप क्या है आपकी? स्टूडेंट है। एक्सीलेंट हो गया माशाल्लाह। फिर उसके बाद क्या कह रहा है बेटा आपको? इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहा है कि सम एलिमेंट्स ऑफ अरे आर अनयूज्ड। ठीक है। आपसे क्या कह रहा है? सम। अच्छा, अब ये और भी काम हो सकता है, अब ये तो खैर वो ठीक है। सम एलिमेंट्स ऑफ अरे आर अनयूज्ड। तो आप इसको कैसे, ये बड़ा कॉमन है, हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो आप अब क्या कर सकते हो? आप वो चीजें लिख सकते हो जो इस रेंज में नहीं आ रही हैं। यानी आपने क्या कर दिया, सपोज किया कि आपने कह दिया कि स्टूडेंट आईडी के अंदर आपने क्या कर दिया? एम्प्टी का कीवर्ड यूज कर दिया, ईमेल आईडी में एम्प्टी का कीवर्ड यूज कर दिया, या कोई ऐसा सिंबल लगा दिया। क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3 के अंदर आपने क्या कर दिया? 100 लिख दिया, या 0 लिख दिया, या -1 लिख दिया। अब अगर किसी क्लब में -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनयूज है, अभी तक इसमें कोई वैल्यू आपने स्टोर नहीं की है। या स्टूडेंट आईडी के अंदर कहीं सर्च करते हैं, वहां लिखा होता है एम्प्टी, तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट आईडी अभी आपने यूज नहीं की है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? एम्प्टी
ठीक है, आप क्या कर सकते हो बेटा, आप यहाँ पे word empty can be used to represent this data item. This field is unused. This array element is unused. ठीक है, तो जब आप सर्चिंग करोगे तो आपको डेटा स्टोर करना होगा, तो किसी लोकेशन पे तो आप जाके पहले देखोगे कि वो वहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, अगर एम्प्टी लिखा हुआ है तो उसका अनयूज्ड है, यू कैन स्टोर डेटा ओवर देयर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया था कि उसने बोला था कि स्टूडेंट नंबर 42 का डेटा चेंज करना है। किसका डेटा चेंज करना है? स्टूडेंट नंबर, टू चेंज डेटा ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब आपको स्टूडेंट नंबर सपोज किया फॉर एग्जांपल चेंज द डेटा ऑफ स्टूडेंट नंबर 42, या इनपुट द डेटा ऑफ स्टूडेंट नंबर 42, या प्रिंट द डेटा ऑफ स्टूडेंट नंबर 42। ठीक है ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट नंबर 42 का आपको डेटा चेंज करना है, तो आप ये लिखोगे कि क्या है भी आपकी वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, वेरिएबल का नाम है आपका मेंबरशिप। कौन से? 40, ठीक है ना, 42 या 42, 42, ठीक है, का आपको नाम चेंज करना है, तो आपने इसके अंदर डॉट नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जी कर दिया आपने। ठीक है ना, मेंबरशिप 42, ठीक है, का आपको आईडी चेंज करना है, तो आपने इसकी आईडी लिख दी 123। मेंबरशिप 42 का और क्या था बेटा, आईडी, ईमेल था, ईमेल, सॉरी ईमेल था, ठीक है, वो चेंज करना तो हमने कर दिया सब। जरूरी नहीं कि सारों को चेंज करवाया हो आपसे, हो सकता है एक दो आइटम को चेंज करवा रहा हो, तो एक दो आइटम को भी आप चेंज कर सकते हैं। xyz@xyz.com, ठीक है, ये हो गया। फिर आपसे कह सकता है कि स्टूडेंट नंबर 25 का डेटा डिस्प्ले करो, तो प्रिंट कर दोगे। आपसे कहता है कि स्टूडेंट नंबर 30 का डेटा इनपुट ले लो, तो आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपका पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, जब ये आ जाता है आपसे, अगर ये समझ में आ जाता है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा, अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर हम दूसरा स्टेप है हमारे पास, वो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को हम करेंगे, लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तो अब वो टाइम नहीं है इतना कि हम इस वक्त कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंशाल्लाह 3:30 या 4 जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करूँगा। फिर मैं, मेरी परसों असल में A2 का भी पेपर है ना, तो मैं उसमें भी बिजी हो जाऊंगा। तो फिर उसके बाद ये होगा कि फिर मैं एट नाइट में इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हूँगा, जब जिस टाइम आपको क्लास लेनी हो तो आप क्लास ले सकते हो। ठीक है ना, हम क्लास को कभी भी कर सकते हैं। सही है बेटा, अब आपको क्या करना है कि मैं इसकी वीडियो अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको फौरन से इस वीडियो को देखना है। इसमें कोई चीज़ समझ में